Good morning, students. Today we will continue Unit 3 of 11th class subject Business Studies. And the name of that Unit 3 is Public and Private Sector. This is the second part of the lecture. And in first part of lecture, we will already discuss the meaning of public and private sector, types of private sector only, features of public and private sector. So in this lecture we will discuss about the forms, or you can say types of public enterprises, public sector enterprises. So before starting the types, I want to discuss some points which you have to keep in your mind regarding this. That is, public enterprises may be incorporated और नॉन इनकॉर्पोरेटेड, मीन्स इनका रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है और ये बिना रजिस्ट्रेशन के भी फॉर्मुलेट की जा सकती हैं. इनका फॉर्मेशन बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो सकता है. सो some types of enterprises means are compulsorily having registration, but some enterprises can set up without registration. So we will discuss the same in the in the type wise. Very first is departmental undertaking. Departmental undertaking means that type of enterprises in public sector which is set up by, which is established by government department. मीन्स गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों में से कोई भी एक उसको सेटअप कर सकता है या तीनों मिलकर भी सेटअप कर सकते हैं. सो अ टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, अ टाइप ऑफ पब्लिक firm which is managed, controlled and run by government. Government means central government, state government or local government, under the direction of the minister concerned. Means one minister is appointed and one department is also there. Like railway is a department and the minister of railway इज़ द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्सन को, एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दे देती है और उस डिपार्टमेंट में उस टाइप की ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. मीन्स रेलवे मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग रेलवे डिपार्टमेंट. सो वन डिपार्टमेंट इज़ देयर, one minister is the all over in charge of that particular department, and that minister appoint one CEO, chief executive officer. कौन अपॉइंट करेगा, that minister of the department. रेलवे मिनिस्टर अगर हम लेते हैं तो उसके अंडर CEO होगा. क्लियर. And that minister is responsible for each types of positive and negative remark of their department. A report regarding the activities of these enterprises is prepared and sent to the parliament or state assembly every year. जितनी भी एक्टिविटीज़ ये डिपार्टमेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, उन सबकी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, पार्लियामेंट में जाती है. कौन पार्लियामेंट में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर. या स्टेट असेंबली में भी मंगवाई जा सकती है. सो दैट डिपार्टमेंट इज़ फुल्ली अंडर कंट्रोल बाय दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर. क्लियर. सो एक बजट अप्रूव होता है हर साल. उस बजट के थ्रू इनके पास फाइनेंशियल हेल्प आती है. गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करती है, और उस फाइनेंस को किस टाइप से इन्होंने यूटिलाइज़ किया है, इस मिनिस्टर ने कैसे यूटिलाइज़ किया है, वो मिनिस्टर अपनी रिपोर्ट के थ्रू पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में जो है वो पब्लिकली शो करता है. So some examples are there, like post and telegraph department is an example of departmental undertaking. In the same form, Indian Railway is also a live example of departmental undertaking. All India Radio, Doordarshan, telephone services, ordnance factory, these are the examples of departmental undertaking. Now we will discuss about some features of departmental undertaking. So very first you can say this type of organizations, these types of public enterprises are formulated by government departments, fully government department, and full ownership is there by that particular government, maybe local government or state government or central government, and that type of departmental firms are managed by that particular government. So these types of public enterprises means departmental undertakings को formulate means
बनाने का काम, इनकी ऑनरशिप का काम और इनको मैनेज करने का काम सारा गवर्नमेंट के अंडर रहता है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ही और शी कैन अपॉइंट वन CEO अंडर their supervision, means that CEO is considered as the secretary of the department. Next you can say financing. Complete financing is done by government. सारे के सारे अमाउंट फाइनेंस इनके पास बजट के थ्रू आता है एंड दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक। लोगों से कुछ भी उधार नहीं ले सकते, पब्लिकली कोई भी लोन नहीं ले सकते। दे आर यू कैन से डिपेंडेंट, totally dependent even for their daily expenses on गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही इनको डेली के एक्सपेंसेस के लिए भी मनी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट यू कैन से नो सेपरेट एग्जिस्टेंस इज़ देयर। इस टाइप के डिपार्टमेंट अपने नेम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते एंड यू कैन से दे कांट फाइल एनी टाइप ऑफ कोर्ट केस अगेंस्ट एनी वन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर। एंड नोबडी कैन स्यू देम। कोई भी इन पे केस नहीं कर सकता और ये भी किसी पे भी केस नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यू कैन राइट इन दिस पॉइंट दैट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो फुल गवर्नमेंट यू कैन से इंटरफेरेंस इज़ देयर। पूरी तरह ये गवर्नमेंट के अंडर रहता है और पूरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है इस टाइप के डिपार्टमेंट में, इस टाइप के पब्लिक एंटरप्राइज में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स, you can see employees of these types of enterprises are considered as government employees। इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, रेलवे के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑल इंडिया रेडियो के, दूरदर्शन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ही कंसीडर किया जाता है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन बोर्ड और कमीशन, लाइक UPSC एंड यू कैन से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इज़ ऑल्सो देयर। तो ये बोर्ड और कमीशन ही इस टाइप की अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ये अपने बेसिस पे अपने डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज़ जो हैं वो अराइज़ होती हैं जब, तो उनके लिए टेस्ट्स जो हैं प्रिपेयर होते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, अपने बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं। सो दीज आर सम फीचर्स रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ कम टू द इवैल्यूएशन साइड। इवैल्यूएशन साइड मीन्स यू हैव टू write down merits and demerits of departmental undertaking. So as merits of departmental undertaking you can write easy formation. Very first, easy formation means it's very easy to formulate or to form these types of organizations, these types of organization, because there is no need of registration is there. These types of organizations are fully prepared or established by government only, clear। तो इनको बहुत easy होता है सेटअप करना, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट के अंडर ही इनकी रजिस्ट्रेशन मींस एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो इनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट यू कैन राइट इफ़ेक्टिव कंट्रोल, because these types of departments has their own rules and regulations and means you can say trained officers are there, educated officers are available in these types of department. So effective control is conducted by the officers, concerned officers. नेक्स्ट वन यू कैन राइट इंक्रीज़ इन दी गवर्नमेंट इनकम। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर डन बाय गवर्नमेंट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है। सो ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स आर इन द पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ही पॉकेट में जाती हैं इन टाइप के डिपार्टमेंट्स की जितनी भी इनकम होती हैं। तो अगर ये डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रन करते हैं, सो इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट यू कैन से डिक्रीज इन द टैक्स बर्डन। देखो, गवर्नमेंट के पास अगर इन डिपार्टमेंट से अच्छी इनकम आती है तो गवर्नमेंट इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो है वो बोल्ड होगी। सो देयर इज़ नो नीड टू
इम्पोज्ड हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द कस्टमर्स और जनरल पब्लिक, है ना। पब्लिकली जो है गवर्नमेंट को कम टैक्स लगाने पड़ेंगे अगर उनकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की इनकम अच्छी जाती है तो, क्योंकि उनकी इनकम जो है वहाँ से ही अगर अर्न हो जाती है तो उनको पब्लिक पे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो फॉर्म्स हैं अगर वो लॉस में चली जाती हैं तो उनके एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक पे हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो इम्पोज करके अपने उन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को वहाँ से कवर करेगी। नेक्स्ट यू कैन राइट ईजी फाइनेंसिंग। क्लियर। ईजी फाइनेंसिंग मीन्स कि इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं दीज आर ऑन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनली एंड बाय फाइनेंशियल वाइज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए होते हैं ये डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट की इनकम का बहुत अच्छा पार्ट होते हैं और इनको जो फाइनेंसिंग है वो भी गवर्नमेंट करती है, तो इनको किसी और से फाइनेंसिंग के लिए जो है वो स्टेप्स नहीं लेने होते। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पब्लिक और यू कैन से गवर्नमेंट। इनको अपने सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स हैं ईयर वाइज पार्लियामेंट में शो करने होते हैं, स्टेट असेंबली में शो करने होते हैं। सो यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। 100% मीन्स यूटिलाइजेशन होगा जो भी इनके फंड्स हैं, जो भी इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सब का। नेक्स्ट टॉपिक इज़ limitation of departmental undertaking. As we all know that each and every coin has two sides, so the second side of these types of departmental undertaking is negative side. So limitations of departmental undertaking you can write very first, lack of flexibility. अगर एक बार यहाँ कोई भी डिसीज़न ले लिया जाता है तो उसमें चेंजेस नहीं होते, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए उनमें चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहेगी इस टाइप के डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, यू कैन राइट डिले इन डिसीजन। इफ़ यू वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ इनिशिएटिव, एनी टाइप ऑफ चेंज, एनी टाइप ऑफ मीन्स कोई भी आपने डिसीज़न लेना है, सो वन लॉन्ग स्केलर चेन इज़ देयर। आपको छोटे से छोटे डिसीज़न के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए बहुत लंबे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। हायर से हायर अथॉरिटीज़ की, ऑफिसर्स की परमिशन लेनी होती है और ये सब चीज़ें क्योंकि रिटर्न में चलती हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहती है और डिसीजंस लेने में कई बार अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाथ से निकल जाती हैं, काफ़ी डिले हो जाता है। नेक्स्ट, यू कैन राइट अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता, कंपटीशन में नहीं होता। रेलवे का कॉम्पिटिटर कौन है? ठीक है, ऐसे ही पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। सो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की जो है वो कमी रहती है। इस वजह से ये जो है अपने जैसे इनको ऑर्डर मिला बस वैसे ही चलाते रहते हैं और इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं आती कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि ये सैलरीड पर्सन चलाते हैं। तो इस टाइप की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है उसका लैक रहेगा और आप यहाँ राइट कर सकते हो अनेबल टू टैप गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसी वजह से ये कॉन्टीन्यूसली जो है रिस्की डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा और लॉस हो जाएगा तो वो चीज़ जो है बर्डन में डाल देगी गवर्नमेंट को। सो अनेबल टू टैप गवर्नमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, यू कैन से रेड टेपिज्म इज़ देयर, ब्यूरोक्रेसी इज़ देयर। रेड टेपिज्म बोलते हैं लाल फीताशाही को। ठीक है, सो मीन्स एक एक्सेसिव पेपर वर्क होता है इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में और मोस्टली जो है आप किसी भी ऑफिसर के टेबल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको फाइल्स के ढेर मिलेंगे। सो हीप ऑफ फाइल्स आर देयर एंड दे आर टाइड इन रेड टैप। सो नो वर्क कम्स टू एन एंड, मीन्स बहुत सालों तक लटकते रहते हैं इनके जो काम होते हैं वो। तो इस वजह से जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें
अननेसेसरली डिले रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कई बार हाथ से निकल जाती हैं। एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ ऑल्सो देयर। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो जो गवर्नमेंट करंट में है, रूलिंग गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट सेट अप देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट गवर्नमेंट इज़ टोटली मीन्स हैज़ राइट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से भी ये प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर नीड्स। दे यूजुअली डोंट गिव एनी कंसिडरेशन फॉर द कंज्यूमर नीड्स, बिकॉज आप कह सकते हो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों की कठपुतली होते हैं इस टाइप के डिपार्टमेंट्स। क्लियर? तो वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इनको अपना जो है डिसीज़न लेने होते हैं, वर्कआउट करना पड़ता है। तो कंज्यूमर्स की क्या नीड्स हैं, कंज्यूमर किस टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफ़िल ना करके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए लाइबल रहते हैं। सो इन एट द एंड ऑफ द एवेल्यूशन यू कैन राइट द यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो इन लिमिटेशंस के होने पर ये नहीं है कि इस टाइप के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होंगे ही नहीं, सेटअप ही नहीं होने चाहिए। सो सम कंडीशंस आर देयर इन विच डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर you can say fully suitable. So you can write down that type of utility or suitabilities. So very first you can say a department where secrecy plays a vital role, जहाँ पे secrecy का बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लाइक डिफेंस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। सो वहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के वे से ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं। इन द सेम फॉर्म यू कैन राइट दिस मीन्स you can say a type of firm or public enterprise where full control means is in the hand of government। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल रखना हो और पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ह्यूज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी हो, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी चीज़ों के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सूटेबल रहेगा। इन द सेम फॉर्म हैवी इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और जहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड तक कोई गारंटी नहीं होता प्रॉफिट के लिए, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में कभी भी नहीं खोले जाएंगे। सो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ही खोले जाएंगे। सो इन एरियाज़ में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा।